Hello friends, very good morning. I hope and wish and pray that you are doing well. In fact, I wish to pay my floral tribute or homage to the children who got killed in yesterday's school collapse in Rajasthan. I wish to start my point with the fact that in 1980 there was a small village. स्मॉल विलेज के लिए मैं आपको एक वर्ड बता चुका हूं, हैमलेट, HAMLET, याद करिए उसको. There was a hamlet and there was a child, girl child. She was very fond of studying, but the train could not go to the school where she wanted to study. She approached the management, the authorities. Understand, authorities. Authorities means officers and authority means power. लिखो इसको आप, take your pen and notebook. Authorities means officers and authority means power. So she wrote to the authorities, and you will be surprised to note that the train was permitted to go to her destination where a school was situated, जहां उनका स्कूल था, वहां उनको उसको ले जाया गया 3 साल तक, because there was no other traveler on that way and she was the alone. Now see the height of standards of people, of their mentality and respect for the education. Education or education, the way you feel like. On the other hand, we have seen that about, it is a round figure, it is a data which is very general, that 1/5 of the schools do not have electricity, basic amenities, facilities like toilets, like potable water, POTABLE, write down, POTABLE. पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है पीने का पानी, potable water. I come to the world, I have already said to pay floral tribute or homage. We have done this already. भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करना. Condolence का मतलब होता है सांत्वना. People are giving condolences to the families whose children are dead. It is very unfortunate. Collapse, roof and terrace. रूफ और टेरेस लगभग एक ही चीज होती है, टेक्निकली ये बहुत फर्क होता है. रूफ इज रूफ एंड देयर इज अ टेरेस ऑन द रूफ. टेरेस मीन्स विच प्लेस इज यूज्ड फॉर फ्लावर्स, for moving out, that is called terrace. So let's not go in that weird detail. Collapse means girna, dhena. The school collapsed. Oh my God, unbelievable. And the bereaved families, dukhi parivar, shok santrapt parivar, grieving, verb है ये grieving, दुखी. इसे एक वर्ड हमारे पास आ रहा है, ये एडजेक्टिव है ग्रीफ. ग्रीफ मीन्स दुख. ग्रीफ मीन्स दुख. अगर आप पढ़ना चाहें तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं. एंटन चेकव, ANTONCHEKOV, एंटन चेकव एक रशियन राइटर है. उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है, द ग्रीफ. उसको पढ़िए आप. You will be moved. The tears will roll on your eyes. I bet it. So, that is
ग्रीफ. नाउ वी कम टू रुइन. रुइन वर्ब है ये. रुइन का मतलब बर्बाद करना. डेस्ट्रॉय. डेस्ट्रॉय. DESTROY. एंड रुइन्स का मतलब होता है खंडहर. जैसे yesterday I was watching television and it was shown कि पुराना किला जो खंडहर था which was ruins fell down and swayed with the water. पानी के साथ ही बह लिया. swayed with the water. ये बातों के साथ बहना और पानी के साथ बहना एक ही बात है. When some leader is speaking, he is giving you some facts and you are swayed with his talk and you cast vote to him. ये sway वो भी है और नदी के बहाव को भी sway कहते हैं. Now that is ruins. Rotten means सड़ा हुआ. The whole system is rotten. The whole system is rotten. Wail, shriek and scream. The same meaning, having more or less same meaning. इसका मतलब है दुख से चिल्लाना, रोना, पीटना, बिलखना. ये वर्ब है. वेल का वेल्ड हो जाएगा, श्रीक का श्रीक्ड हो जाएगा सेकंड टर्म, स्क्रीम का स्क्रीम्ड हो जाएगा. इन जनरल वर्ड वी कॉल इट क्राई. जो पूरा स्कूल था दैट टर्न, वो चेंज हो गया इनटू अ डेब्री. ऐसे नहीं बोलना है आपको, लिखना है. डेब्री मीन्स मलबा. डेब्री मीन्स मलबा. इसके लिए दूसरा बड़ा हमारे पास है रबल. दूसरा बड़ा हमारे पास रबल. कोलैप्स वी हैव ऑलरेडी डन. ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट वर्ड. टू पास द बक. अब ये बक क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं. बक एक तो स्लैंग है ये अमेरिका में. जब किसी से कोई पैसे मांगता है, गिव मी अ बक. $1 को बक कहते हैं. बक मीन्स $1. गिव मी अ बक. एक वहां राष्ट्रपति हुए हैं ट्रूमैन फ्रॉम 1945 टू 1953. ये मैं सब इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. आई हैव बीन स्टडीइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका. तो वो ट्रूमैन हुए हैं 1945 से 1953 तक. उन्होंने एक बात कही थी, द बक स्टॉप्स हियर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. काम होगा तो यही होगा. दिस इज द लास्ट प्लेस. इसलिए उनके टेबल पर फाइल नहीं होती थी. उनका जो टेबल था दैट वाज ऑफ अ ओवल साइज. ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं. OVL, ओवल होता है अंडाकार, जिसमें 16 एंगल होते हैं. देयर आर 16 एंगल्स इन ओवल टेबल. सो दैट इज ट्रूमैन. तो ट्रूमैन से आप वक रखिए. टू पास द बक का मतलब है टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल वन आफ्टर द अदर. सड़क वाले ये कह रहे हैं कि बिजली वालों ने खोदा है, बिजली वाले कह रहे हैं PWD वालों ने खोदा है, PWD वाले कह रहे हैं उन्होंने खोदा है. दे आर पासिंग द बक ऑन ईच अदर. वो एक दूसरे पर जिम्मेवारी लाद रहे हैं. दे डोंट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो टू पास द बक मीन्स जिम्मेवारी टालना. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोब. प्रोब का मतलब गहराई से जांच करना. जब डॉक्टर कोई किसी को फोड़ा फिंसी हो जाता है तो उसको देखता है ऐसे करके, उसको भी प्रोब कहते हैं. गहराई से जांच करने को भी प्रोब कहते हैं. और इंक्वायरी, आई वाला इंक्वायरी, ये ध्यान रखना आपने. आई वाला इंक्वायरी जो है वो जांच के लिए आता है और ई वाला इंक्वायरी जो है वो जनरल होता है. अब यू से वेल यू नो हेलो आर यू कॉलिंग फ्रॉम टाटा? या आई हैव सम प्रॉब्लम इन माय बिल्स. कुड आई टॉक टू सो एंड सो. तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं ई वाली. Is that clear? Now we come to deceased. We have already done this word, जिसको मृतक कहते हैं. Now I come to the word rickety and dilapidated. इसको पढ़ना आपने dilapidated. Dilapidated. रिकिटी एक तरह की बीमारी होती है, हड्डियों की बीमारी होती है. For want of vitamin D, जब हड्डियां उनकी मुड़ जाती हैं तो दैट इज विटामिन डी. दैट इज रिकिटी. वैसे रिकिटी का मतलब यहां है खस्ता हालत, बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत. इसी के वर्ड का है डायलापिडेटेड. मुझे याद आता है मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, शायद द ट्रिब्यूट स्टोरी का नाम था. उसमें वो ये कह रहा है
जो बस में जा रहा है वो ये पूरी बस ही बज रही है, हॉर्न बजने की जरूरत ही नहीं है, हॉर्न बजता ही नहीं है. देयर इज नो हॉर्न इन द बस बिकॉज द होल बस इज रैटलिंग. RATTLE. रैटल जानते हैं आप? आपने बच्चे के हाथ में देखा झुनझुना वैसे करके करता है, दैट इज कॉल्ड रेटलिंग. दैट इज कॉल्ड रेटलिंग. तो ऐसे जब बजती है कोई तो दैट इज कॉल्ड रेटलिंग. आप अपने पापा मम्मी या आप खुद गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में से आवाज आ रही है कर टर पर, दैट इज रेटलिंग. दैट इज rattling. Now, I was talking of the word rickety and dilapidated. Our whole system is dilapidated. बिल्कुल सड़ा गला सिस्टम हो गया है, बिल्कुल जर्जर हो गया है. इसके लिए जर्जर वर्ड बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट इज जीर्णावस्था. नाउ द वर्ड इज लैक्स. एडजेक्टिव है, लैक्सिटी नाउन है. लैक्स का मतलब बिल्कुल लापरवाह. उनको ये भी नहीं पता कि स्कूल की बिल्डिंग में सीपेज हो रही है, SEEPAGE लीकेज हो रही है, डैम्प हो रही है, पूरी दीवारों में सीलन आ गई है. नहीं पता उनको, लगे हुआ. एंड यू नो व्हाट हैपेंड व्हेन सम पेबल्स वर फॉलिंग फ्रॉम द रूफ. चिल्ड्रन वर सेइंग, बच्चे कह रहे थे कि सर वो ऊपर से, तो गुरुजी तो भग लिए कि ऊपर से पेबल्स गिर रहे हैं. उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, नथिंग विल हैपन, डोंट वरी. एंड द रूफ collapsed. The roof collapsed unfortunately. And the next word that is negligence and inertia. Inertia का मतलब होता है जड़ता. फाइल के ऊपर फाइल के ऊपर फाइल के ऊपर फाइल के ऊपर फाइल, कोई काम नहीं कर रहा. Nobody is working. मुझे याद है वो एक बात करते थे हम, तो ये कहते थे कि न हम ही गधे हैं न तुम ही गधे हो, पर क्या करें फाइलों से लदे हो, काम तो करना नहीं. तो फाइलें टेबल पे भरी जा रही हैं. जब भरी जा रही हैं फाइलें ऐसे, तो उसको हम कहते हैं पाइल अप. PILE, पाइलिंग ऑफ द फाइल, पाइलिंग ऑफ द फाइल्स. दैट इज वी आर टॉकिंग ऑफ to pass the buck, because everybody is passing the buck. Now I come to the next word. The word is rampant, rife. Rampant और rife का मतलब होता है बोलबाला. जैसे भ्रष्टाचार का बोलबाला है, करप्शन इज रैम्पेंट. अब इसमें बोलबाला की अंग्रेजी नहीं लगेगी, उसका मतलब रैम्पेंट ही है या राइफ ही है. ध्यान रखिए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भाई भतीजावाद का बोलबाला है. जिसका भाई भतीजा होता है सब अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा लगा लेते हैं. यू आर सीइंग इट, इट्स फैक्ट. दैट इज रैम्पेंट एंड राइफ. ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही. ब्यूरोक्रेट्स जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको हम अफसर कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स. नाउ वी कम टू द वर्ड टर्माइट. टर्माइट का मतलब दीमक होता है. They are eating the country like the termite is eating the wood, not woods. क्योंकि wood का मतलब लकड़ी होता है, woods का मतलब जंगल होता है. We have already done it. Right. Now let's go ahead. Pathetic, heart-rending और heart-wrenching. ये adjective है heart-wrenching, दिल को झकोरने वाला, दिल को काटने वाला. This is heart-wrenching incident. दिस इज हार्ट रेंडिंग इंसिडेंट. इसलिए मैंने एक लिखा हुआ नीचे प्रोवर्ब, कहावत मैंने लिखी है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस. जिस तन लागे सो तन जाने. जिनको मुसीबत पड़ी हुई है, जिनके बच्चे मरे हैं, उस दर्द को वही जानते हैं. दे नो दैट ग्रीफ, नोबडी एल्स कैन, नो सिस्टम कैन. राइट. नाउ वी कम टू द वर्ड नाइटमेयर and nightmarish. Ravana sapna. It's like a nightmare that students are praying early in the morning and the roof collapses on them. Oh my God! Unbelievable! Unbelievable! But true. But true. And the next word is victim. जो शिकार हुए हैं उनको विक्टिम कहते हैं. ये कोई भी हो सकता है. आप मेट्रो में जा रहे हैं, आपकी जेब कट गई तो आप विक्टिम हो गए. शिकार होना, दैट इज विक्टिम. वी आर फॉलिंग, ऑल फॉलिंग विक्टिम टू द करप्शन. राइट.
Now we come to the next verse, succumb to injury, चोट लगने से मरना. Many children succumbed to their injuries, right? And now the word is fatal. Fatal means घातक, जिससे डेथ हो जाती है. He met a fatal accident. तो इसमें डेथ लगाने की जरूरत नहीं है, फेटल में ही डेथ है. He met a fatal accident. अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, फेटल का मतलब घातक होता है, आपने फिल्म भी देखी होगी, और फेटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी होता है. ये अंग्रेजी है. दिस इज इंग्लिश. व्हाई वी डू नॉट नो. फेटल मीन्स घातक, इन विच somebody dies. बट फेटलिस्ट मीन्स भाग्यवादी, जो कहता है जो करेगा राम करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा, मैं तो मस्त हूं. So that is fatalist, भाग्यवादी. Now we come to the word fatal and scum, victim. We have done. Potable water, drinking water. It's very, very serious problem everywhere in the country that even children are not getting potable water. So these are some of the words. I have given you example of the girl, that is Sachiko. वो जो लड़की थी उसका नाम साचिको है, और वो गर्ल जो है उसने उसका जो स्टोरी है वो है द गर्ल हु वेटेड. द गर्ल हु वेटेड. इट इज अ स्टोरी अराउंड 1980. यू कैन चेक ऑन गूगल, स्टडी द स्टोरी, गेट इंस्पायर्ड. गेट इंस्पायर्ड, INSPIRED, इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड. जिन बच्चों के पास स्कूल भी नहीं है, सरकार कैसे उनको स्कूल मुहैया कराती है, किस तरह से गाड़ी 3-3 साल गाड़ी चलवाती है, स्पेशली फॉर वन चाइल्ड. दैट इज द कंट्री, दैट इज जापान. हम इसको जापान बोलते हैं, एशियन कंट्री भी बोलते हैं, एशियन भी बोलते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बोलना आपने. लेकिन जापानी जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे जापानीज, नॉट जापानीज. दैट इज जापानीज. सो I wish and hope you'll do your homework, keep revising all the words. You are having your notebook, 2 notebooks, one for vocabulary and the other for general translation, which madam is getting you done more or less every day, right? All the best. Wish you all the luck. Thank you.